Hey guys, this is Gurjap and we are studying integration, and the first topic of this video is integration by partial fraction. Now what is partial fraction? Partial fraction is a way to write integrands as the sum of simpler rational functions. Now rational function is denoted by px by qx, where qx cannot be equal to 0. Now if degree of p of x is greater than degree of q of x, we call them improper rational function, and if degree of p of x is less than degree of q of x, then we call such rational functions, proper rational functions. Now how do we use partial fraction to do the integration of a function? Now in your syllabus, we'll be studying 5 forms of rational function and their corresponding forms of partial fraction. One of such forms is px plus q divided by x minus a into x minus b. Now a rational function of this form can be written in the form of partial fraction as a upon x minus a plus b upon x minus b. Okay, now how do we use integration to solve such functions? Firstly, हम इसको ब्रेक करते हैं partial fraction में, ऐसी फॉर्म को ब्रेक करते हैं ऐसे partial fraction में. Okay, then we equate them to find the value of a and b. We substitute these values and then use integration to get the result. Now as I mentioned, in your syllabus there are 5 forms of rational function and the corresponding forms of partial fraction. You can pause the video right now to check them out. Now let's solve some example using method of partial fraction. First one is x upon x plus 1 x plus 2. It is of the form px plus q upon x minus a into x minus b. और इस फॉर्म के corresponding partial fraction क्या होती है? a upon x minus a plus b upon x minus b. So this one can be written in the form of partial fraction as a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. इसको देते हैं हम equation 1. Now we'll solve this equation to find the value of a and b. So taking LCM on the right hand side, we get a into x plus 2 plus b into x plus 1 upon x plus 1 x plus 2, which is equal to ax plus 2a plus bx plus b upon x plus 1 into x plus 2. Now equating, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, सो इक्वेटिंग तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को हम इक्वेट कराएंगे. सो इक्वेटिंग coefficient of x and the coefficient of constant. So coefficient of x इस केस में क्या हमारे पास x कॉमन आ गया, we get a plus b x, और constant क्या हमारे पास plus 2a plus b. So दोनों के हमने coefficient of x इक्वेट कराए. यहाँ पे coefficient of x 1, so a plus b is equal to 1, और constant हमारे पास यहाँ पे 0, so 2a plus b is equal to 0. Subtracting, we get minus 2 minus a is equal to 1, so a is equal to minus 1. Using the value of a is equal to minus 1, in this case we get minus 1 plus b is equal to 1, so b is equal to 2. So a की वैल्यू आ गई हमारे पास minus 1, b की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, we get minus 1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 2. अब हमें क्या निकालना था इसका इंटीग्रल, so integrating this dx will be equal to integration of this one dx. दोनों की अलग अलग हो जाएगी, so integral minus 1 upon x plus 1 dx plus integral 2 upon x plus 2 dx, which is equal to minus बाहर, तो ये क्या है 1 upon x की फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी log x plus 1 plus 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 upon x plus 2 का इंटीग्रल log x plus 2 plus c constant of integration. इसको हम और अच्छी तरह से लिख सकते हैं. We'll write log 2 times log of x plus 2 minus log of x plus 1 plus c. अब we know a log b is equal to log b raised to power a. तो इसकी पावर यहाँ चल जाएगी, 2 यहाँ पे पावर में चल जाएगा, so we get log x plus 2
square minus log x plus 1 plus c which is equal to, अब log a minus log b implies log a by b, so log x plus 2 upon x plus 1 plus c which is the final result. Now in the next example we have x upon x minus 1, x minus 2, x minus 3 which is of the form p x square plus qx plus c upon x minus a, x minus b and x minus c, और इसकी corresponding partial fraction होती है of the form a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c. ओके, तो इसको ब्रेक करेंगे. वी राइट a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. This is equation 1. So next step, LCM of right hand side हमारे पास क्या आ जाएगा? We get a into x minus 2 x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 and x minus 2 divided by x minus 1 x minus 2 x minus 3. डिनोमिनेटर दोनों के सेम. अब न्यूमिनेटर में इक्वेट करा दो. वी गेट x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2. अब हम निकालने वैल्यू ऑफ a b एंड c. तो सब फर्स्ट वाल क्या करेंगे हम? पुट x इज इक्वल टू 1. दो तरफ x1 पुट करा, तो अगर मैं x1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. 1 माइनस 1 0, ये होल टर्म 0. यहाँ पे भी 1 माइनस 1, ये होल टर्म 0. ये दोनों फैक्टर 0 हो गए. अब यहाँ पे x को 1 पुट करा, मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 x1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1. सो माइनस माइनस प्लस वी गेट 2a. सो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 1 अपॉन 2. कूल. अब सेकेंड फैक्टर हमें b और c की वैल्यू भी निकालनी है. सो अब b है हमारे पास x माइनस 1. अब हम क्या करेंगे? a को x को पुट करेंगे हम 2 एट x इज इक्वल टू 2. यहाँ पे 2 पुट करा, 2 माइनस 2 0, ये होल फैक्टर 0. यहाँ पे 2 पुट करा, 2 माइनस 2, ये होल फैक्टर 0. एक फैक्टर आएगा हमारे पास b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 पुट कर दो. वी हैव 2 इज इक्वल टू b इंटू एक्स माइनस 1 सॉरी 2 minus 1 into 2 minus 3 which is equal to b into 1 into minus 1 which is equal to minus b. So b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2. ओके, a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब निकालनी है c की वैल्यू. सो वी पुट x इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पे 3 पुट करा, 3 माइनस 3 0, ये फैक्टर 0. यहाँ पे 3 पुट करा, 3 माइनस 3, ये होल फैक्टर 0. हमारे पास क्या रह जाएगा? c. 3 इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू c इंटू 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू c इंटू 2 एंड 1 विच इज इक्वल टू इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3 बाय 2. तो हमारे पास आ गई a, b और c की वैल्यू. इन तीनों को यहाँ पुट करेंगे. वी गेट a है हमारे पास 1/2. सो वी हैव 1 अपॉन 2 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है माइनस 2 अपॉन x माइनस 2. c की वैल्यू है 3/2. सो वी हैव प्लस 3/2 x माइनस 3. ये आ गई हमारे पास x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 की पार्शियल फ्रैक्चर फॉर्म. नाउ विल इंटीग्रेट it to find the result. So integrating this term dx will get integration of this whole term dx. तीन टर्म है, तीनों की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी. वी गेट इंटीग्रल 1 अपॉन 2 x माइनस 1 dx प्लस माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट 3 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 3 dx. यहाँ पे भी 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा. वी गेट 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx.
तो ये भी किस फॉर्म में है, 1/x की फॉर्म, 1/x की फॉर्म, 1/x की फॉर्म। हमारे पास क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल log ऑफ x, दैट इज 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इंटू log ऑफ x माइनस 2 प्लस 3/2 इंटू log ऑफ x minus 3 plus c, constant of integration, and hence the result. Now next example is we have x upon x square plus 1 into x minus 1, which is of the form px square plus qx plus r upon x square plus ax plus b into x minus c, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, ax plus b upon ax plus b upon x square plus ax plus b plus c upon x minus c। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म क्या हो जाएगी, ax plus b upon x square plus 1 plus c upon x minus 1, put it equation 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c। तो नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग LCM, वी हैव a x plus b into x minus 1 plus c into x square plus 1 upon x square plus 1 into x minus 1, which is equal to a x square minus ax plus bx minus b plus c x square plus 1। तो x square की टर्म साथ में ले लो, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो कंपेयरिंग न्यूमिनेटर दैट इज x इज इक्वल टू दिस टर्म। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x square के कोफिशिएंट एक साथ a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x के कोफिशिएंट दैट इज प्लस b माइनस a इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म्स जो कि है यहाँ पे c आएगा c माइनस b। ना इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्स x एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ साइड्स, तो x के कोफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास, a प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं, x के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, b माइनस a इज इक्वल टू 1 और कांस्टेंट c माइनस b इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a, b और c की यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट c इज इक्वल टू माइनस a, यूजिंग दिस वैल्यू here we get in this term, sorry, using this value in this equation we get minus a minus b is equal to 0। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई है a और b की फॉर्म में, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, this is 3 and this is 4। So solving equation 2 and 4 we get b minus a is equal to 1 और यहाँ पे minus b minus a is equal to 0। So adding both terms we get, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ऐड करने पे यहाँ गया 2b is equal to 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। So b is equal to 1/2, use this value in equation 2। So this equation implies 1/2 minus a is equal to 1, implies minus a is equal to 1 minus 1/2 implies minus a is equal to 1/2, जिसका मतलब हुआ a की वैल्यू क्या जाएगी -1/2। So we have a is equal to -1/2, b is equal to 1/2। अब रहेगी हमारे पास c की वैल्यू, यूजिंग वैल्यू ऑफ a in this equation 5। So we get -1/2 plus c is equal to 0 implies c is equal to 1/2। तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई, a is equal to -1/2, b is equal to 1/2 and c is equal to 1/2। Substituting these values in equation 1 we get -1/2 x plus 1/2 upon x square plus 1 plus 1/2 upon x minus 1। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म्स आ गई हैं, a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। नाउ विल फाइंड इट्स इंटीग्रल। सो इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन dx, यहाँ पे इसका इंटीग्रेटल हो जाएगा पूरे का dx। अब दो टर्म्स एडिशन में, दोनों का इंटीग्रल डिफरेंट डिफरेंट, वी गेट इंटीग्रल -1/2 बाहर कांस्टेंट -1/2 इंटू x प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस यहाँ पे भी 1/2 बाहर कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इसका डिनोमिनेटर भी है, इसका भी है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। वी गेट 1/2 इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/2
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1 डी एक्स। ओके, अब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1/2, 1/x की फॉर्म में है तो log x माइनस 1 log ऑफ x माइनस 1। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे वो है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा 1/4, और ये क्या है 1/x² प्लस 1 जो कि होता है इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। सो वी हैव टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। अब ये वाली टर्म आ गई, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस फंक्शन क्या करेंगे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बाय 2। सो वी गेट 1 अपॉन डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 2 से मल्टीप्लाई किया 2x डिवाइड करा तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 1/4। अब पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वी गेट 1/4 इंटीग्रल 2x dx क्या है हमारे पास dt, 1/x के प्लस 1 क्या है हमारे पास t। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटीग्रल ऑफ t रेज़ टू पावर 1/2 dt माइनस 1/2 dt विच इज़ इक्वल टू 1/4 t रेज़ टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 1/2, यहाँ पे भी 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2/4 t रेज़ टू पावर 1/2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू t की वैल्यू थी हमारे पास x के प्लस 1। सो वी गेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट प्लस 1/4 tangent inverse x plus 1/2 log of x minus 1 plus c. Now next topic is integration by parts. Now integration by parts is quite useful to solve integration with product of two functions. So if we have two functions, product of two functions f of x into g of x dx और उसकी इंटीग्रेशन करनी है, उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। और इसको याद करने का और तरीका, एक फंक्शन को फर्स्ट बोल दो एक को सेकेंड। सो यू कैन राइट फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। Okay, easy. Let's look at an example to further understand it. So for example, suppose I'm given कोई हमारे पास है फंक्शन x sin x dx। इसमें दो फंक्शन है, एक को बोलूँगा मैं फर्स्ट फंक्शन, एक को बोल दूंगा मैं सेकंड फंक्शन। ओके, तो इसका इंटीग्रल क्या होएगा फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx होल इंटीग्रल। ओके, तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस x। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस x कॉस x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ x 1 इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस कॉस x माइनस कॉस x dx। नेगेटिव साइन बाहर गया, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस की इंटीग्रेशन फिर से साइन। सो वी गेट माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c और sin x प्लस माइनस x cos x प्लस c। दिस इज हाउ यू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। वी हैव टू इंटीग्रेट x इंटू लॉग x dx। इसकी इंटीग्रेशन होगी बाय पार्ट्स से। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इस तरह से चूज करना चाहिए कि आपको इंटीग्रेशन करने में इजी हो। नाउ वी लो कि log x की हमें इंटीग्रेशन नहीं आती है, तो मैं log x को क्या लूँगा फर्स्ट फंक्शन, x को लूँगा मैं सेकंड फंक्शन। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है फर्स्ट फंक्शन दैट इज log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। ओके, फर्स्ट फंक्शन log x, x की इंटीग्रल क्या होगी x dx की इंटीग्रल क्या होगी x स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x
into integral of x square by 2, एक x से एक कैंसल, dx which is equal to x square by 2 log x minus 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx which is equal to x square upon 2 log x minus 1/2 x square by 2 plus c which is equal to x square by 2 log x minus 1/4 x square plus c. Next example is sin inverse x square. अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे लगाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 1. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin इनवर्स x इंटू 1, sin इनवर्स x स्क्वायर आएगा. सो इसमें लेंगे हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन dx. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट फंक्शन sin इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ sin इनवर्स x स्क्वायर into integral of x dx whole integral which is equal to 1 का इंटीग्रल x into sin inverse x square minus integral. Now differential of sin inverse x is sin inverse x square क्या होगा? 2 into sin inverse x into integral of sin inverse x जो कि होता है 1/√1 minus x square, ओके, into इंटीग्रल ऑफ 1 जो कि है x होल इंटीग्रल dx. तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे? x इंटू साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर. अब यहाँ पे मेरे पास फिर से दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. इसको बोलूँगा मैं फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलूँगा मैं सेकंड फंक्शन. अब इनको मेरे को दोबारा बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो वी गेट, अब ये फंक्शन तो ऐसे चलता रहेगा साथ में, तो वी हैव x इंटू साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों के लिए क्या होगा? बाय पार्ट्स. सो माइनस ब्रैकेट बाय पार्ट्स यूज़ किया, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटीग्रल 2x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dx of sin inverse x into integral of second, that is 2x upon √1 minus x square dx whole integral. तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x. अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt. ये आ गया dt, इसका आ गया 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे साइन इनवर्स x का इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? फिर से अंडर जो यहाँ पे निकाला हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 dx. √1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन इनवर्स x इंटू √2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल x इंटू 2 का इंटीग्रल 2x माइनस 2x होल ब्रैकेट में, ब्रैकेट यू आर क्या था? नेगेटिव साइन. यूजिंग इट वी गेट साइन x इंटू साइन इनवर्स x नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इंटू 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus c, and hence the result. So guys, this was it for today. We'll be continuing the chapter of integration in the next video. Till then, keep practicing.